Hello everyone, this is Abhishek Mohanty and you are watching Padarth Vigyan. So students, welcome to lecture number 2 of the revision series. In lecture number 1, we had started the chapter electricity and we had discussed few formulas, few questions. But today in lecture number 2, we will discuss one of the very important topic of this chapter and its name is the combination of resistances. And many students they face difficulty while solving numericals from this concept. So let us discuss all the details about this topic one by one. Let's get started. So students, remember that in an electric circuit the resistors can be connected in two ways. The first one is the series combination, the second one is the parallel combination. So the combination of resistances is of two types. The first one is the series combination and the second one is the parallel combination. So first we have to understand what is the difference between series and the parallel combination. So first we'll discuss about the first one, the series combination of resistances. So students, remember that in series connection what happens, the resistors are connected end to end. The series connection is also known as the end to end connection, end to end connection. ता माने कौन? Suppose I have three resistors. This is R1, this is R2 and this is R3. Suppose मो पाखरे तीनोटी resistor अच्छी R1, R2 and R3 and I have a battery like this. मो पाखरे गोटे battery अच्छी. So I have to connect all these resistors in series. तो आमे केमिति connect करिबा? First resistor right end will be connected to the left end of second resistor. Again I am repeating, in series connection what happens, the right end of first resistor will be connected to the left end of second resistor. Similarly, the right end of second resistor will be connected to the left end of third resistor and so on. जदि मो पाखरे 4टा कि 5टा कि 10टा resistor थिबो, then in that same manner I will proceed. So let us arrange all these three resistors in series. This is R1, this is R2, this is R3. ता माने R1 रो right end को मो connect कली R2 रो left end रे. Similarly R2 रो right end को मो connect कली R3 रो left end रे and so on. This is R2 and this is R3. Okay, so this is the combination of the three resistors. Now a combination or extreme left, this one, extreme right, this one. Is that clear? We have this combination of three resistors and this is the extreme left end, this is the extreme right end. तो आमे कौन करिबा? ए combination or extreme left end को आमे connect करिबा with the one pole of the battery. आमे जानिछे गोटे बैटरी रो पॉजिटिव पोल थाए आउ नेगेटिव पोल थाए. सो दिस इज द पॉजिटिव पोल, दिस इज द नेगेटिव पोल. जोटा अछि लार्जर लाइन अछि सेटा होछि पॉजिटिव पोल, स्मॉलर लाइन होछि नेगेटिव पोल. सो दिस इज द बैटरी. तमे कोन करिबा नै कॉम्बिनेशन रो लेफ्ट एंड को कनेक्ट करिबा विथ द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी and this negative end will be connected to the negative of the battery. And suppose here I will connect an ammeter. Ammeter कौन करिबो? Ammeter will measure the amount of current flowing in the circuit. ए circuit रे केते amount of current flow होची ताको measure करिबो किए? The ammeter will measure it. And here I have a switch or key. And now the switch is closed. ठीक अछि? एटा होची switch रो symbol, closed switch. ता माने the circuit is on. जदि मैं डॉट को लिभे देबी, it means the circuit is off or the circuit is open. ता माने to flow current in the circuit I have to close the key. That's why I have to give the dot mark inside the bracket. This is the symbol for the closed key. This is ammeter, this is the battery and we have the three resistors. So this is the series combination of the resistances. So students, मन रखो, when resistors are connected in series, what happens? The same current flows
in all registers. Same current flows in all the registers. सीरीज कॉम्बिनेशन रे जेतेटा रजिस्टर कनेक्ट होइथिबे सबु रजिस्टर रे सेम अमाउंट रो करंट फ्लो हो। आ मन रख करंटटा सदा बेले बैटरी रो पॉजिटिव रो बाहर आउ नेगेटिव रे एंट्री हुए। तो आमे जो बैटरी नहीं चे से बैटरी रो पॉजिटिव एंड होची दिस वन एंड दिस इज द नेगेटिव एंड। तो एबे कोन हबो जदि मो सर्किट को क्लोज करिवि स्विच को ऑन करिवि देन बैटरी रो पॉजिटिव रु गोटे करंट आसीबो। सपोज से करंट को लिखुच I is the current and suppose the potential difference of the battery is V volt रो मोटे बैटरी लगे क्वेश्चन रे सपोज इटा 10 वोल्ट कहिथिबो किबा 12 वोल्ट कहिथिबो किबा 6 वोल्ट कहिथिबो वैल्यू विल बी गिवन। सो एबे कोन होची ना जेते मु स्विच को ऑन कली बा सर्किट को क्लोज कली सडनली I amount of current starts flowing from the battery। एबे कोन हबो आमे देखि पारुचे ए करंट एबे जो फ्लो हबो एमती आसीबो ठीक अछि। सो द करंट हैज अ सिंगल पाथ टू ट्रैवल, देयर इज नो अदर पाथ। करंट पाई केवल गोटे ही रास्ता अछि सेमिति आसीबो ए पाथ रे मूव करी कि अगेन इट विल एंटर इनसाइड द बैटरी। त माने ए सेम करंट आई विल पास थ्रू R1 थ्रू R2 एंड थ्रू R3 जेहेतु करंट पाखरे केवल गोटे ही रास्ता अछि। सो द सेम करंट will flow through all these registers। is that clear? तमाने R1 रे I amount रो करंट फ्लो हबो, R2 रे I amount रो करंट फ्लो हबो एवं R3 रे सेम I amount रो करंट फ्लो हबो। is that clear? okay, now ohms law रे हम कोन पढिचे हमें ohms law रे पढिचे जेते बेले गोटे रेजिस्टेंस रे किछि करंट फ्लो हुए देन से रेजिस्टेंस रे गोटे वोल्टेज हमें डेवलप होबा से रेजिस्टेंस रे गोटे वोल्टेज डेवलप हुए। जदि रेजिस्टेंस रो वैल्यू होची R एवं से रेजिस्टेंस रे I अमाउंट रो करंट फ्लो होची देन से रेजिस्टर रे केते अमाउंट रो वोल्टेज आसीबो करंट इनटू रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ कोन कहूची ओम्स लॉ कहूची V इक्वल टू IR एटा मन रखिबो V इक्वल टू IR। जदि गोटे रेजिस्टर रे I अमाउंट रो करंट फ्लो होची देन द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर विल बी V इक्वल टू I इनटू R। तो आमे एठी कोन देखिले जे R1 रेजिस्टर रे I अमाउंट रो करंट फ्लो होची। तो जदि मैं पचारिबी व्हाट इज द वोल्टेज और व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द फर्स्ट रेजिस्टर तर आंसर कोन हबो V1 is equal to IR1 कहीं ना R1 रेजिस्टर रे I अमाउंट रो करंट फ्लो होची। इट इंप्लाइज दैट R1 रो अक्रॉस रे वोल्टेज केते आसीबो V1 और तार वैल्यू केते IR1। सिमिलरली से I अमाउंट रो करंट R2 रे फ्लो होची ताले R2 रो अक्रॉस रे वोल्टेज केते आसीबो ताको हम लिखिबी V2। तो V2 केते हबो V2 हे जिवो I into R2। सिमिलरली R3 अक्रॉस रे वोल्टेज केते आसीबो V3 एंड V3 रो वैल्यू केते I into R3। इज दैट क्लियर? सो V1 V2 V3 are the voltages across R1 R2 and R3। V1 रो वैल्यू केते हबो IR1, V2 रो वैल्यू केते हबो IR2, V3 रे वैल्यू केते हबो IR3। इज दैट क्लियर? ओके, तो स्टूडेंट्स एबे देखो आम पाखरे तीनटा रेजिस्टर अच्छी आ गोटे बैटरी अच्छी एंड ए तीनटा रेजिस्टर रे जो करंट फ्लो होची ए करंट फ्लो होवार कारण कौन ना आम पाखरे गोटे बैटरी अच्छी आ ये बैटरी रा काम कौन द बैटरी विल मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर। इज दैट क्लियर? तो these three registers are connected in series। तो एटा होची रेजिस्टर रो कॉम्बिनेशन। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। एई कॉम्बिनेशन रो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड को मु A कहली, एक्सट्रीम राइट एंड को मु B कहली। एक्सट्रीम लेफ्ट एंड इज A, एक्सट्रीम राइट एंड इज B। Point A is connected to positive of the battery, point B is connected to negative of the battery।
और जो बैटरी अच्छी ए बैटरी रो पोटेंशियल डिफरेंस केते ना v वोल्ट ता माने पॉइंट ए आउ पॉइंट बी भितरे पोटेंशियल डिफरेंस केते आसीबो v वोल्ट कहेगी ना पॉइंट ए इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ द बैटरी पॉइंट बी इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ द बैटरी ता माने बैटरी रो वोल्टेज जहाँ रहिबो दैट वोल्टेज विल डेवलप अक्रॉस ए एंड बी पॉइंट ए आउ पॉइंट बी भितरे पोटेंशियल डिफरेंस बा वोल्टेज केते ना v व्हिच इज इक्वल टू द बैटरी वोल्टेज किंतु आमे कौन देखले R1 R2 आउ R3 अक्रॉस रे डिफरेंट अमाउंट रो आमे वोल्टेज पाउचे V1 V2 V3 अमाउंट रो वोल्टेज पाउचे इज दैट क्लियर तो जदि मु V1 V2 और V3 को ऐड करिवि V1 V2 V3 को यदि मु ऐड करिवि आई विल गेट द टोटल बैटरी वोल्टेज कहीं कि ना V1 V2 V3 जो डेवलप होची अक्रॉस R1 R2 R3 कहाँ पे डेवलप होची इट इज डेवलप्ड ड्यू टू दिस बैटरी V जदि मु बैटरी में रिमूव कर देबी किछि करंट फ्लो होबनी एंड देयर विल बी नो वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस द रेजिस्टर्स त माने V1 V2 और V3 रो रीजन कौन दिस बैटरी एंड जदि से को ऐड कर देबी V1 प्लस V2 प्लस V3 तो मु ऐड कर देबी देन आई विल गेट V सो V लगते V होची V1 प्लस V2 प्लस V3 इज दैट क्लियर V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 देन आमे गोटे क्वेश्चन करिवा सपोज आम पाखरे गोटे कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स अच्छी सपोज इटा होची 5 ओम दिस इज 10 ओम एंड दिस इज 15 ओम एंड मो पाखरे गोटे 15 वोल्ट रो गोटे बैटरी अच्छी 15 वोल्ट रो गोटे बैटरी अच्छी इज दैट क्लियर तो आमे बे कैलकुलेट करिवा जे वर्तमान सर्किट रे केते अमाउंट रो करंट फ्लो हबो एंड ईच रेजिस्टर रे केते अमाउंट रो वोल्टेज डेवलप हबो एंड एबे मुझे कहली V1 प्लस V2 प्लस V3 विल बी इक्वल टू V सेटा ठीक ना भूल आमे एबे वेरीफाई करिवा तो वर्तमान आमे जानि छे व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज तो सेही केस रे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट केते हबो द टोटल रेजिस्टेंस हम लिखिबा RS रो मीनिंग कोन द सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ठीक अछि so we have 3 resistors they are connected in series and we have to calculate the total circuit current तो total circuit current को calculate करिया पई हमें कोन करिबा first we have to calculate what is the total resistance what is the equivalent resistance of the combination after finding the equivalent resistance हमें कोन करिबा total voltage divided by total resistance कर देबा and we will get the total current so RS केते आसीबो 5 ohm plus 10 ohm plus 15 ohm 5 ohm plus 10 ohm plus 15 ohm so 5 plus 10 is 15 15 plus 15 is 30 so total resistance of the circuit is 30 ohm is that clear तबे सर्किट रे केते अमाउंट रो करंट फ्लो हबो ता माने ए बैटरी रा पॉजिटिव रो केते अमाउंट रो करंट बाहरिबो I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस टोटल वोल्टेज इज 15 वोल्ट 15 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस केते 30 ओम सो 15 वोल्ट बाय 30 ओम एटा केते हबो एटा हे जिवो 1/2 एम्पियर बा आकम लिखि परिबी 0.5 एम्पियर ता माने सर्किट रे 0.5 एम्पियर अमाउंट रो करंट फ्लो 0.5 झा हाफ सेया सो 0.5 एम्पियर अमाउंट रो करंट सर्किट रे फ्लो एंड ऑल दिस रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज ता माने सबु रेजिस्टर रे सेम अमाउंट रो करंट फ्लो हबो व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स इज दैट क्लियर ता माने 0.5 एम्पियर करंट 5 ओम रे फ्लो हबो 10 ओम रे फ्लो हबो एंड 15 ओम रे मध्ये फ्लो हबो सो व्हाट इज V1 माने कोन वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम 5 ओम रेजिस्टर अक्रॉस रे वोल्टेज केते आसीबो V1 रा फार्मूला कोन I * R1 V1 केते
I इंटू R1 आम देखा जे ए रेजिस्टर वैल्यू केते रेजिस्टेंस वैल्यू केते एंड केते अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होची करंट मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस विल गिव द वैल्यू ऑफ वोल्टेज सो I केते I होची 0.5 एम्पियर सबू रेजिस्टर रे सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होची सो I को लिखिबी 0.5 एम्पियर इंटू R1 केते R1 होची 5 ओम 0.5 एम्पियर इंटू 5 ओम एटा केते हबो एटा हबो 2.5 वोल्ट 2.5 वोल्ट ता माने फर्स्ट रेजिस्टर रे जो 5 ओम रेजिस्टर अच्छी से 5 ओम रेजिस्टर रे 2.5 वोल्ट रो गोटे वोल्टेज डेवलप हबो सिमिलरली V2 केते आसीबो V2 हबो I into R2 वोल्टेज अक्रॉस द सेकंड रेजिस्टर से केते हबो I into R2 I केते सेम दैट इज 0.5 एम्पियर into R2 केते R2 होची 10 ओम so 0.5 ampere into 10 ohm that will be equal to 5 volt ता माने 10 ohm resistance across रे 5 volt रो voltage आसीबो so V1 होची 2.5 volt V2 होची 5 volt and now we'll go to the third one जो होची 15 volt so 15 volt resistor 15 ohm resistor across रे voltage केते आसीबो V3 equal to IR3 that is equal to 0.5 ampere into 15 ohm that is equal to 7.5 volt 7.5 volt so V3 is equal to 7.5 volt तो वर्तमान हमें V1 V2 V3 पाई गले now we will add all these voltages V1 plus V2 plus V3 V1 केते V1 होची 2.5 वोल्ट प्लस V2 केते 5 वोल्ट प्लस V3 केते 7.5 वोल्ट द आंसर विल बी 7.5 plus 2.5 will be 10 10 plus 5 will be 15 वोल्ट होची बैटरी वोल्टेज एंड आमे कोन देखले जदि मु इंडिविजुअल वोल्टेज को ऐड करूची आई एम गेटिंग द टोटल वोल्टेज इज दैट क्लियर V1 plus V2 plus V3 is equal to the total battery voltage ता माने सीरीज कॉम्बिनेशन रे कोन हुए टोटल बैटरी वोल्टेज ता डिस्ट्रीब्यूट हे जाए among all the resistors this total battery voltage V will be distributed among all the resistors V1 across R1 V2 across R2 V3 across R3 is that clear so this is all about the series combination and remember that series combination रे कोन हुए तार केतरे हमें प्रॉपर्टी पढिबा so suppose मो पाखरे बहुत गुडे रेजिस्टर अछि and I have connected them in series okay so से रेजिस्टर रे मिनिमम रेजिस्टेंस गोटे थिबो and आ गोटे मैक्सिमम रेजिस्टेंस थिबो इज दैट क्लियर मो पाखरे जो सब रेजिस्टर अछि ता भितरे गोटे थिबो मिनिमम रेजिस्टेंस गोटे थिबो मैक्सिमम रेजिस्टेंस so when I connect all those resistors in series then equivalent resistance value will be greater than the maximum resistance let me write here in series combination the equivalent resistance is greater than the maximum resistance of the combination remember this point because you can write or you can note down this point in your copy in series combination the equivalent resistance is greater than the maximum resistance of the combination तार मीनिंग कोन सपोज मो पाखरे तीनटा रेजिस्टर अछि बा चारटा अछि रेजिस्टर गोटे होची 1 ओम आ गोटे होची 3 ओम गोटे होची 7 ओम आ गोटे होची 9 ओम ठीक अछि I have these four resistors 1 ohm 3 ohm 7 ohm and 9 ohm so
এই চারটা রেজিস্টার ভিতরে মিনিমাম রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে কোটা 1 ওম, ম্যাক্সিমাম কোটা 9 ওম। Among these four resistors, the maximum resistance is 9 ohm. Is that clear? And if they are connected in series, तो এই केस रे equivalent resistance RS ର value केते आसीबो 1 plus 3 plus 7 plus 9. 1 plus 3 is 4, 4 plus 7 is 11, 11 plus 9 is 20. So RS केते आसीबो 20 ohm आसीबो, and this 20 ohm will be greater than, this 20 ohm is greater than the maximum resistance of the combination. Again, read this statement: in series combination the equivalent resistance is greater than the maximum resistance of the combination. ता माने ए combination रो maximum resistance केते 9 ohm. ता माने आमे जो equivalent resistance पाइबा series combination केस रे, that equivalent resistance will be greater than the maximum resistance. ता माने 20 ohm is definitely greater than the 9 ohm resistor. And then remember that suppose I have a number of identical resistors. Suppose I have a number of identical resistor. Identical resistor meaning कौन ना, सबू resistor रो resistance value same थिबो, 5 ohm 5 ohm 5 ohm किबा 10 ohm 10 ohm 10 ohm, ठीक अछि। सबू रेजिस्टर रो रेजिस्टेंस वैल्यू सेम थिबो, त हम कहि परिबी R R R R लाइक दिस। तो जदि मो पाखरे आइडेंटिकल रेजिस्टर थिबे, आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, and suppose each resistor has value capital R, then and suppose I have n number of resistors, I have n number of identical resistors and they are connected in series R R R R, ठीक अछि। मो पाखरे n टा identical resistors अछि and they are connected in series। तो से केस रे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS रो वैल्यू केते हबो, हमें जानि छे when resistors are connected in series the equivalent resistance is given by the sum of the individual resistances. So I will add all these resistors one by one. So RS by series equivalent resistance रो वैल्यू केते आसीबो R plus R plus R dot 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 plus R। मो पाखरे n टा रेजिस्टर अछि, n ର वैल्यू 5 हे पारे, 10 हे पारे, 20 हे पारे, 100 हे पारे। तो क्वेश्चन रे मेंशन करथिबो केतोटी आइडेंटिकल रेजिस्टर अछि। सो in general I am taking that I have n number of identical resistors। ता माने मु R को n थरा मिसेबी, R को मु n टाइम्स मु ऐड करबी, तो वैल्यू केते आसीबो, वैल्यू हे जिवो n into R, RS will be n into R। फॉर एग्जांपल जदि मो पाखरे चारिटी रेजिस्टर अछि आइडेंटिकल रेजिस्टर, तो R plus R plus R plus R रहि जो 4R। सिमिलरली जदि मो पाखरे 6टा अछि रेजिस्टर आइडेंटिकल रेजिस्टर, सो केते हबो इक्विवेलेंट R plus R plus R plus R plus R plus R 1 2 3 4 5 6, the answer will be 6R। Similarly if I have n number of identical resistors, so in that case RS will be NR। Is that clear? RS will be NR। So this is all about your series combination, and now we will go to the parallel combination, parallel combination of resistors। So what happens when we connect a number of resistors in parallel? What happens when you connect a number of resistors in parallel? Remember that in parallel combination the potential difference or the voltage across all the resistors are same। How? देखो suppose मो पाखरे I have 3 resistors R1 R2 and R3, R1 R2 and R3, and I have to connect them in parallel।
ठीक अच्छे आई हैव टू कनेक्ट देम इन पैरेलल एंड आई हैव ए बैटरी हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्ट तो मैं कौन करी दिस इज द बैटरी and the potential difference is V volt. Here I will connect an ammeter. This is the key and this is the point A and this is the point B. ठीक है जी? This is the point A, this is the point B. ଏବେ ଦେଖ point A is connected to the positive of the battery and point B is connected to the negative of the battery. Is that clear? Point A is connected to the positive of the battery, point B is connected to the negative of the battery. And suppose the voltage or the potential difference of the battery is V volt. Is that clear? ता अर्थ कौन? ता अर्थ होचे या point A और point B भितरे potential difference V volt अछि. Is that clear? बैटरी रो voltage बा बैटरी रो potential difference जहाँ रहिबो पॉइंट ए आउ पॉइंट बी भितरे पोटेंशियल डिफरेंस से रहिबो तो वर्तमान आई विल अरेंज ऑल दिस रेजिस्टर्स इन पैरेलल तो केमति करबी सबु रेजिस्टर लेफ्ट एंड को मु कनेक्ट करबी पॉइंट ए रे आ सबु रेजिस्टर राइट एंड को मु कनेक्ट करबी पॉइंट बी रे नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द सीरीज कनेक्शन एंड द पैरेलल कनेक्शन सीरीज में कौन करते ना फर्स्ट रेजिस्टर राइट एंड को आम लगौले कनेक्ट करते सेकेंड रेजिस्टर लेफ्ट एंड रे सेकेंड रेजिस्टर राइट एंड को आम कनेक्ट करते थर्ड रेजिस्टर लेफ्ट एंड रे एंड सो ऑन बट नाउ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आम कौन करवा सबू रेजिस्टर लेफ्ट एंड को गोटे पॉइंट रे जॉइन करवा और सबू रेजिस्टर राइट एंड को आउ गोटे पॉइंट रे हमें जॉइन करिबा लाइक दिस नाउ you can see that I have connected the three registers in parallel R1 R2 R3 I have connected all these registers in parallel सबू register left end is connected to point A and the right end is connected to point B. Is that clear? तो वर्तमान मु कौन कही point A आउ point B भितरे potential difference केते V volt बैटरी रो वोल्टेज जहाँ थिबो point A आउ point B भितरे potential difference से आसीबो ओके अच्छा now my question is what is the potential difference across R1 R1 रो लेफ्ट एंड और राइट एंड भितरे पोटेंशियल डिफरेंस केते द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 पोटेंशियल डिफरेंस PD मींस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 केते आसीबो देखो R1 रो लेफ्ट एंड लागिची A को राइट एंड लागिची B को ता माने A और B भितरे पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ थिबो R1 अक्रॉस रे पोटेंशियल डिफरेंस सेम आसीबो तले A और B भितरे पोटेंशियल डिफरेंस केते V वोल्ट ता माने R1 अक्रॉस रे पोटेंशियल डिफरेंस केते आसीबो सेम V वोल्ट इज दैट क्लियर नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 रो लेफ्ट एंड और राइट एंड भितरे potential difference kete how to find it again you can see that R2 left end is connected to point A and the right end is connected to point B ता माने point A और point B भितरे potential difference जहाँ थिबो R2 across रे same potential difference आसीबो that is V volt ता माने potential difference across R2 is also V volt and similarly the potential difference across R3 is also V volt. तमें कौन देखले? When the resistors are connected in parallel, the same voltage V, the same voltage develops across all the resistors. एठी आसीबो V volt, एठी आसीबो V volt, एठी आसीबो V volt. Because
सबु रजिस्टर लेफ्ट एंड इज कनेक्टेड टू पॉइंट ए, राइट एंड इज कनेक्टेड टू पॉइंट बी। तमाने सबु रजिस्टर रे सेम अमाउंट रो वोल्टेज आसीबो। ओके ठीक अछि। तो वर्तमान क्वेश्चन है कौन, जदि मुझे स्विच को ऑन कर देबी एबे कौन हबो, ए बैटरी रु किछि अमाउंट रो करंट बाहरिबो। हमें जानिचे करंट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी एंड इट एंड्स ऑन द नेगेटिव ऑफ द बैटरी। तबे कौन हबो, पॉजिटिव एंड रु गोटे करंट बाहरला। ठीक अछि। तो वर्तमान ए पॉइंट रु करंट बाहरिबो अप टू दिस पॉइंट, ता पाखरे गोटे सिंगल रोड अछि, किंतु when this current will reach at this junction एबे कौन हबो, करंट पाखरे तीनटा डिफरेंट रोड अछि। ठीक अछि। एटा होछि गोटे रोड थ्रू R1, एटा होछि सेकंड रोड थ्रू R2 एंड दिस इज द थर्ड रोड थ्रू R3। इज दैट क्लियर? ओके। तबे कौन हबो, किछि अमाउंट रो करंट R1 थ्रू रे पास करिवो, किछि अमाउंट रो करंट R2 थ्रू रे पास करिवो, किछि अमाउंट रो करंट R3 थ्रू रे पास करिवो। इज दैट क्लियर? ओके। सपोज हमें कहिबा जे I1 अमाउंट रो करंट पास करिवो थ्रू R1, I2 अमाउंट रो करंट पास करिवो थ्रू R2 एवं I3 अमाउंट रो करंट पास करिवो थ्रू R3। तो वर्तमान I1, I2 और I3 रो एक्सप्रेशन तर वैल्यू आमे केमिति बाहर करिबा। आमे जानिचे जदि गोटे रेजिस्टर रो रेजिस्टेंस R एंड से रेजिस्टर अक्रॉस रे वोल्टेज होची V, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट इन द रेजिस्टर विल बी I इक्वल टू V बाय R। जदि आम पाखरे रेजिस्टेंस रो वैल्यू दिया हिची एंड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज आल्सो गिवन, then to calculate the current flowing through it आमे कौन करिबा, आमे यूज करि परिबा द फॉर्मूला I इक्वल टू V by R। इज दैट क्लियर? तो वर्तमान I1 केते आसीबो, I1 हे जिवो V by R1। I1 र मीनिंग कौन, करंट फ्लोइंग थ्रू R1 that will be equal to V by R1। सिमिलरली I2 केते हबो, V by R2 हबो एंड I3 केते हबो, V by R3 हबो। इज दैट क्लियर? I1 इक्वल टू V by R1, I2 इक्वल टू V by R2 एंड I3 इक्वल टू V by R3। एंड जदि में I1, I2, I3 को ऐड कर दबा, मिसे दबा, I will get the total current। केते अमाउंट ऑफ करंट बैटरी बाहर छी। ठीक अछि। I1 होची केते अमाउंट ऑफ करंट R1 थ्रू रे फ्लो होची, I2 होची केते अमाउंट ऑफ करंट R2 थ्रू रे फ्लो होची एंड I3 इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R3। बट जदि मो I1, I2 और I3 को ऐड कर देबी, I will get the total current in the circuit। ता माने एठी जो एमीटर अछि से एमीटर मेजर करिवो को करंट, दिस करंट। काहे कि ना ए करंटटा पॉजिटिव रे बाहरला, एमदी जीवो आज एही पहुंचबो, then I1, I2, I3 डिवाइड हो जिवो, अगेन पॉइंट बी रे ऐड हे कि कंबाइन हो जिवो एंड देन सही सेम अमाउंट रो करंट I आज की बैटरी भीतर एंट्री करिवो। तो मन रखताओ गोटे बैटरी रु जेतिकी अमाउंट रो करंट बाहर थिबो से सेम अमाउंट रो करंट एंट्री हबो। इज दैट क्लियर? आ ए केस रे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाहर करिया पई फार्मूला कोन ना 1 by Rp इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। ठीक अछि। 1 by Rp इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। Is that clear? And if we have identical resistors, से केस रे Rp रो वैल्यू केते आसीबो, in case of n number of identical resistors, n number of identical resistors। तो सही केस रे आमे Rp रो वैल्यू केते लिखिबा ना 1 by Rp केते आसीबो, 1 by R plus 1 by R plus 1 by R plus dot 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 n times
n मे बी 5 मे बी 10 मे बी 20 मे बी 100 ठीक अच्छे तो मो पाखे n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टर्स अच्छी एंड ईच रजिस्टर हैज रेजिस्टेंस कैपिटल R तो से केस रे इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सो व्हाट इज द फॉर्मूला 1 by Rp इक्वल टू 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 एंड सो ऑन जेहेतु मो पाखे n टा रजिस्टर अच्छी तो ताको मु n थोड़ा ऐड करिवि 1 by R plus 1 by R plus 1 by R डॉट 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 n टाइम्स तक मु ऐड करिवि सो 1 by Rp केते हे जिवो एटा हे जिवो n by R हे जिवो 1 by Rp इक्वल n by R हे जिवो देन Rp केते हबो R by n Rp will be how much R by n ठीक अछि तो सीरीज केसे कोन हबो RS will be n into R R रे मु n मल्टीप्लाई करथले किंतु पैरेलल रे कोन हबो Rp इक्वल टू R by n is that clear okay another important point about this combination about the parallel combination is in parallel combination the equivalent resistance is less than the least resistance of the combination so what is the meaning of this one in parallel combination the equivalent resistance is less than the least resistance of the combination what is the meaning of this one let us discuss about it suppose मोर एग्जांपल लउची मो पाखरे सपोज तीनटा रजिस्टर अच्छी गोटे होची 5 ओम द अदर वन इज 10 ओम द थर्ड वन इज 30 ओम 5 10 एंड 30 ठीक अछि एंड आई विल कनेक्ट देम इन पैरेलल तो ए कॉम्बिनेशन रे लीस्ट रेजिस्टेंस बा मिनिमम रेजिस्टेंस कोटा अछि 5 ओम मैक्सिमम कोटा 30 ओम so in this combination the least resistance is 5 ohm and if these resistors are connected in parallel तो से केस रे ए कॉम्बिनेशन रो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जहा आसीबो दैट वैल्यू will be less than the least resistance कोन लिखा अछि in parallel combination the equivalent resistance is less than the least resistance of the combination तो वर्तमान मु कैलकुलेट करिबी ए कॉम्बिनेशन रो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस केते and I will show you that the equivalent resistance will be less than 5 ohm ठीक अछि let us calculate it formula कोन 1 by Rp equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 so 1 by Rp केते हबो 1 by 5 plus 1 by 10 plus 1 by 30 so 1 by Rp equal to now you can take LCM केते जिवो 30 हबो LCM so 30 by 5 will be 6 into 1 will be 6 plus 30 by 10 is 3 into 1 is 3 plus 30 by 31 1 into 1 is 1 so 6 plus 3 9 plus 1 10 so 10 by 30 बाकु लिखि परिबी 1 by 3 so 1 by Rp is equal to 1 by 3 then what is Rp equal to 3 by 1 by 3 ohm is that clear तो Rp रो वैल्यू कते भाला 3 ohm भाला and it is obvious that 3 ohm is less than 5 ohm what is 5 ohm 5 ohm होची least resistance of the combination आमे जो तीनटा रेजिस्टर नितले से तीनटा रेजिस्टर भितरे सबुठु मिनिमम रेजिस्टेंस कहारो 5 ohm रो बट आमे जेतले ताकू लगोचे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आमे कोन देखले Rp रो वैल्यू is less than the least resistance 3 ohm is definitely less than 5 ohm okay so you can note this point in your copy
So student, this is all about the series and parallel combination, and always look at the circuit diagram and see in which registers or whether the current has a single path or a multiple path. ठीक अच्छे, तमें जिते क्वेश्चन सब सॉल्व करिबो तमर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जिवो टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑन दिस टॉपिक. ठीक अच्छे, तो आजर क्लास रे मु खाली कॉन्सेप्ट कहि देली. इन द नेक्स्ट क्लास आमे बहुत किछि क्वेश्चन सॉल्व करिबा अबाउट दिस कॉम्बिनेशन. मु आ कोन इंपोर्टेंट पॉइंट कहि को चाहे, आमे पढिचे दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री. त माने कोन, resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area of cross section. आमे पढिचे the resistance is directly proportional to length, inversely proportional to area of cross section. ताको हम लिखि परिबा rho proportional to L by A किंबा R equal to some constant rho into L by A. ठीक अछि, R proportional to L, R proportional to 1 by A, R proportional to L by A किंबा R equal to rho into L by A. रो को हमें कहिबा कौन, रो होची स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. रो को हमें कहिबा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बा रेजिस्टिविटी. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर. वायर टा जो मटेरियल रे तयारी हेची से मटेरियल रो रेजिस्टिविटी बा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होची रो. ठीक अछि, तो एई कांसेप्ट ऊपर क्वेश्चन कोन आस परे ना, सपोज आम पाखरे गोटे वायर अछि, से वायर रो रेजिस्टेंस होची केते, कैपिटल आर. ठीक अछि, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज कैपिटल आर. नाउ आई विल स्ट्रेच द वायर. कोन करबी, मु से वायर को स्ट्रेच करबी. जदि मु से वायर को स्ट्रेच करबी देन से वायर रो लेंथ इंक्रीज हो. ठीक अछि, suppose I will stretch the wire to double its length. Double its length. मुझे वायर को स्ट्रेच करे कि कौन करी ता लेंथ को डबल कर देबी. ठीक अछि, तो जदि मु लेंथ को डबल करी देन व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस. मो पाखरे गोटे वायर थिला, से वायर रेजिस्टेंस थिला कैपिटल आर. ठीक अछि, and now I'll stretch the wire to double its length. जदि तक मु स्ट्रेच करिबी तार लेंथ को मु डबल कर देबी. सपोज 5 सेम थला तक मु 10 सेम कर देबी. तो वर्तमान तार न्यू रेजिस्टेंस केते आसीबो, whether the new resistance will be same as the old resistance, ना 8 रो अधिक होबो ना कम होबो. तो एई टाइप ऑफ क्वेश्चन हम केमिति करिबा. तो स्टूडेंट्स देखो, सपोज इनिशियली आम पाखे जो वायर थिला से वायर रो लेंथ थिला L और एरिया थिला A. Is that clear? The length of the wire was L and area was A. And suppose rho is the resistivity of the material. ताले R रा वैल्यू केते आसीबो, rho L by A आसीबो. Is that clear? Now I will stretch the wire. तक मैं stretch करूची so that the length is doubled. ता माने न्यू लेंथ L डैश. L डैश होची न्यू लेंथ. न्यू लेंथ केते हे जिवो, डबल हे जिवो. इनिशियल लेंथ जहा थिबो तारो 2 टाइम्स बा डबल हे जिवो. आकु लिखबी 2L. जदि आमे वायर को स्ट्रेच करूचे देन तार लेंथ बढ़ी जिवो, एट द सेम टाइम तार एरिया कमी जिवो. द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल डिक्रीज डेफिनेटली. आमे स्ट्रेच कले लेंथ बढ़िबो, एरिया कमिबो. ता माने द वायर बिकम्स थिन. ठीक अछि, टिके पतला हे जिवो. आउ लेंथ टा जेतिकी टाइम्स बढ़िबो, एरिया सेतिकी टाइम्स कमिबो. जदि लेंथ 2 टाइम्स हे जिवो, डबल हे जिवो, एरिया हे जिवो हाफ. ठीक अछि, जदि लेंथ हे जिवो 3 टाइम्स, एरिया हे जिवो 1/3 टाइम्स. जदि लेंथ हे जिवो 5 टाइम्स, एरिया हबो 1/5 टाइम्स. जदि लेंथ हबो n टाइम्स, एरिया हबो 1/n टाइम्स. ताले ए केस रे न्यू एरिया A डैश केते हबो A/2 हे जिवो. द न्यू एरिया A dash will be equal to how much? A/2.
देन द न्यू रेजिस्टेंस ताको मैं लिखुची आर डैश इज द न्यू रेजिस्टेंस देखते हबो जदि आम गोटे वायर को स्ट्रेच करुचे देन से मटेरियल रो नेचर चेंज हम ना जदि मो पाखे गोटे कपर वायर अच्छी ताको मु स्ट्रेच करे कि मु कट कर दिए ताको जहाँ कले भी ते मटेरियल रो नेचर चेंज हेनी मो पाखे से कपर वायर ही आसो तमाने बाय स्ट्रेचिंग और बाय कटिंग ए वायर देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी तमाने रेजिस्टिविटी सेम आसो सो ये लिखी रो इंटू एल डैश बाय ए डैश कहीं ना एल डैश और ए डैश हूँ न्यू लेंथ एंड न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सो रो इंटू एल डैश कहते एल डैश हूँ 2l ए डैश कहते ए डैश हूँ a by 2 नाउ दिस 2 विल गो टू न्यूमरेटर 2 into 2 कहते 4 हो 4 into रो l by a 4 into रो l by a and this रो l by a is nothing but r इनिशियल रेजिस्टेंस ता माने आम ये कौन देखले द न्यू रेजिस्टेंस विल बी 4 times ऑफ द इनिशियल रेजिस्टेंस आर ठीक अच्छे ता माने सपोज क्वेश्चन कही द इनिशियल रेजिस्टेंस इज 4 ओम ठीक अच्छे बा सपोज 3 ओम कही इनिशियल रेजिस्टेंस तक मु स्ट्रेच करी द लेंथ बिकम्स डबल तो से केस रे न्यू रेजिस्टेंस केते आसीबो 4 into 3 4 into 3 equal to 12 ओम ठीक अच्छे सो किसी गोटे गोटे जनरल फॉर्मूला भी कही दूची सो दैट जहाँ भी क्वेश्चन आसीबो आराम से सॉल्व करि पारिबो किसी किसी क्वेश्चन कही लेंथ आम डबल करुचे कि लेंथ को 3 टाइम्स करुचे लेंथ को 5 टाइम्स करुचे लाइक दिस तो गोटे जनरल फॉर्मूला में देखिबा इफ ए वायर इज स्ट्रेच्ड to n times its length तो से केस रे r डैश केते हबो n स्क्वायर into r न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स द ओल्ड रेजिस्टेंस n कौन n होचे आमे केते टाइम्स स्ट्रेच करूचे ए जो क्वेश्चन में करथले इन दैट क्वेश्चन आमे ताकू डबल करथले त माने 2 टाइम्स करथले तो न्यू रेजिस्टेंस केते हबो 2 स्क्वायर into r व्हाट इज 2 स्क्वायर 4 सो 4 आर आंसर जदि मु स्ट्रेच करके तार लेंथ को 3 टाइम्स कर देबी देन न्यू रेजिस्टेंस r डैश केते हबो 3 स्क्वायर into r व्हाट इज 3 स्क्वायर 9 सिमिलरली इफ आई स्ट्रेच इट टू 4 टाइम्स ऑफ द लेंथ देन द न्यू रेजिस्टेंस केते हबो 4 स्क्वायर into r केते हबो 16r हे जिवो इज दैट क्लियर सो जदि क्वेश्चन आसीबो a wire is stretched to this time length 2 times किंबा 3 times किंबा 5 times जहाँ भी कहिथिबो तो से केस रे न्यू रेजिस्टेंस केते हबो दिस वन n स्क्वायर into r टाइम्स ओके किंतु जदि हमें गोटे वायर को कट करबा सपोज गोटे वायर अछि से वायर रो रेजिस्टेंस केते 12 ओम एबे मु कोन करबी ए वायर को दुईटा इक्वल पीस रे कट करी ठीक अच्छे हाफ हाफ कट करी तो जदि मु कट करुच्ची कट केस कौन हम ओनली लेंथ हाफ हो बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टा सेम रहिबो जो वायर टा अच्छी से वायर टा होची गोटे सिलिंड्रिकल शेप रो वायर इज दैट क्लियर द वायर इज ऑफ सिलिंड्रिकल शेप जदि मु कट कर दोची देन यू कैन सी दैट ओनली द लेंथ इज हाफ किंतु जो एरिया चेंज होनी यदि मुझे स्ट्रेच करी एरिया कमी जीवो किंतु कट कले ओनली लेंथ रिड्यूस हम देयर विल बी नो चेंज इन एरिया सो जदि क्वेश्चन लिखाई थी जे द वायर इज कट इनटू 2 इक्वल पीसेस किंबा 3 इक्वल पीसेस तो से केस में कौन करवा ओनली लेंथ हमें कंसीडर करवा जदि एटा होची 12 ओम रो तक मु दुईटा इक्वल पीस करिछि एटा हबो 6 ओम एटा हबो 6 ओम बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ देख मु तीनटा पार्ट कर देबी तीनटा इक्वल पार्ट कर देबी 1 2 3 तीनटा इक्वल पार्ट कर देली तो सही केस रे each part will have resistance how much 4 ohm 4 ohm 4 ohm is that clear
अगर मैं 6टा पार्ट करी देन each part will have resistance 2 ohm. So this is the difference between cutting and stretching. Stretch कले length बढ़िबो, area कमिबो. Cutting कले only length कमिबो, area will remain same. Is that clear? So with this today's class is completed, and in the next class we will solve few numericals related to the series and parallel combination. We will find the equivalent resistance of the circuit, current through different branches. So hopefully you have understood everything which has been taught in this class, and we'll see you again in the next class. Thank you.